Assalamu alaikum class 8. Today we are going to continue reading of Unit 1, The Savior of Mankind. So, take out your books and hold your pencil in your hand. As you know, at first we read difficult words and their meanings. The very first word is threatening. Threatening, khatra, danger. Dominance, vulva. Pagan, कुफार. पेगन, कुफार. इसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से देखनी है, प्रैक्टिस करनी है आपने 5 से 10 मरतबा. पेगन, कुफार. रिनाउंस, तर्क कर दें, छोड़ दें. डेलीगेशन, वफ्द. ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी पार्टी की तरफ से आगे बात करने के लिए जाता है, उनका रिप्रेजेंटेटर्स होता है और किसी दूसरे ग्रोह में से एक वो अपने लोगों को भेजते हैं, चंद लोगों को अपनों में से भेजते हैं आगे बात करने के लिए. रिस्ट्रेन, बाज आ जाएं. डिलेमा या डायलेमा, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. डिलेमा या डायलेमा. तज़ब्ज़ुब. तज़ब्ज़ुब कहते हैं जब आप दो सिचुएशन में से उलझ जाएं कि कौन सी वाली को जो है आपने चूज करना है, आपको समझना बीच में से, दोनों में परेशान हो कि क्या चूज करें क्या ना करें दो सिचुएशन में. नाउ लेट्स कंटिन्यू रीडिंग, बट एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिक्टेशन वर्ड्स, सो हाईलाइट देम. द वेरी फर्स्ट वर्ड इज बिलीफ. नेक्स्ट, थ्रेटनिंग, डोमिनेंस, पेगन, pressure, followers, worshipping, idol worshipping, renounce, occasion, delegation, restrain, enmity, dilemma, situation, memorable, proclamation, abundant, oneness, perish, attempt. Now continue reading. Since here mean चूंकि. Since this belief, चूंकि ये अकीदा was threatening their dominance in the society, चूंकि ये अकीदा उनके गुलबे के लिए, माशरे में उनके गुलबे के लिए खतरा था. The pagan Arabs, कुफारे अरब ने started to mount pressure, माउंट बढ़ाना शुरू कर दिया, प्रेशर दबाव, on the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, and his followers और उनके पैरोकारों पर. Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. They wanted them to renounce their cause. वो उनसे चाहते थे कि वो renounce छोड़ दें, तर्क कर दें their cause, अपना मकसद. यहाँ cause मकसद के लिए आ रहा है. And take to ideal worshipping, take to यहाँ phrase है, इसका मतलब होता है इख्तियार कर लें. Ideal worshipping, बुत परस्ती को. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. On one occasion, एक मौके पर, they sent a delegation, उन्होंने एक वफ्द भेजा to the Rasul's kind, मेहरबान and caring शफीक अंकल चचा अबू तालिब के पास. On one occasion, they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle Abu Talib. They told him, उन्होंने उन्हें बोला, to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty's message. उन्होंने उन्हें बोला कि वो बाज करें, to restrain, बाज करें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की
अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से, और फेस देयर एनमिटी, या उनकी दुश्मनी का सामना करें। They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. Finding himself in a dilemma, खुद को तज़व्वुज़ की हालत में पाकर he sent for बुलवाया his nephew, अपने भतीजे को, and explained to him the situation, और उन्हें सूरत हाल की वजाहत की। Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded. Rasul sallallahu alaihi wasallam ने जवाब दिया with these memorable words, in memorable तारीखी अल्फाज में, यादगार अल्फाज में। My dear uncle, मेरे प्यारे अंकल, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, Tawheed. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. My dear uncle, मेरे प्यारे चचा, if they put the sun in my right hand, अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ पर रख दें, and the moon in my left, और चांद मेरे बाएं हाथ पे, even then, तब भी, I shall not abandon, मैं नहीं छोड़ूंगा, तर्क नहीं करूंगा, proclamation, ऐलान को, of the oneness of Allah, तौहीद, अल्लाह ताला की वहदानियत को, के ऐलान को नहीं छोड़ूंगा। I shall set up the true faith, मैं एक कायम करूंगा एक सच्चा अकीदा upon the earth, रोए ज़मीन पर, और perish in the attempt, या हलाक हो जाऊंगा इस कोशिश में। So these are the reading for today. आपने डिफिकल्ट वर्ड्स प्रिपेयर करने हैं डिक्टेशन के लिए और रीडिंग प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अब EGC ओपन करें। ओपन योर EGC पेज 69. Today we are going to do very first lesson of tenses. बेसिकली हमने जब भी कंटिन्यू किया है, हमने टेंसेस से स्टार्ट किया, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट और इस तरीके से, लेकिन आज हमने उससे पहले कुछ दो वर्ड से इंट्रोड्यूस होना है। यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट एंड देयर। अभी तक आप इट से एज अ प्रोनाउन जो है वो फेमिलियर थे, और देयर से हम किसी प्लेस के लिए जो है हम यूज करते थे, लेकिन आज हमने क्या करना है, आज हमने इनको एक न्यू वे से जो है देखना है। स्टूडेंट्स, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं पाया जाता, जैसे कि इसी को देख लें, आज 7 बजे हैं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, या कल बारिश हुई। अब यहाँ एक्शन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं मौजूद है, डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, और हमने यही पढ़ा है कि हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही नहीं है तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इन सच केस हम क्या करते हैं, हम इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर इट और देयर का यूज करते हैं। हम इन दोनों को बिगिनिंग में यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम यूज ऑफ इट एंड देयर करते हैं। ना क्वेश्चन अराइज कि यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, तो इट कहाँ यूज किया जाए और देयर का यूज कहाँ करना है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देयर का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास सेंटेंस में किसी प्लेस की बात की जाती है, किसी जगह की बात की जाती है, किसी डायरेक्शन की बात की जाती है। लेकिन इट का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास टाइम या वेदर आ जाता है, टाइम या वेदर आ जाता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखें, अब 7 बजे हैं, अब यहाँ पे टाइम की बात हुई है तो हम इट का यूज करेंगे, इट इज 7 o'clock, इट इज 7 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस, कल बारिश हुई, यहाँ वेदर का यूज हुआ है, तो अगेन हम
इट रेन्ड यस्टरडे, हम इट का यूज करेंगे। कमरे में 10 लड़के हैं। देयर आर 10 बॉयज इन द क्लासरूम। प्लेस का जिक्र था तो हमने देयर का यूज किया। बाग में फूल ना थे। देयर वर नो फ्लावर्स इन द गार्डन। अच्छा जी, इसमें एक चीज याद रखने की जरूरत है कि जब ये ऐसे सेंटेंस है जिसमें बिगिनिंग में इट या देयर का यूज किया जाता है, आपने इनको ट्रांसलेट नहीं करना। आपने इन्हें ट्रांसलेट नहीं करना, ये आपको क्लैरिफाई भी किया जा रहा है। We see that in translating each of them into Urdu, we have left the words it and there untranslated as it is quite funny to say. ये अब 7 बजे हैं, ये कल बारिश हुई, वहां कमरे में 10 लड़के हैं, या वहां बाग में फूल ना था। We can say that it and there have been used as introductory words in this, and they simply act as subject. Now turn the page. Now come the turn of lesson 2. Lesson 2 में हम देखेंगे use of is, am, are and was were. Study the model sentences. अब समटाइम हम एक्शन वर्ड्स की बात नहीं करते हैं, हमारा सेंटेंसेस सिंपल होते हैं जिसमें जस्ट हम कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। लाइक पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, मैं पाकिस्तानी लड़का हूँ, मैं टीचर हूँ। तो इस केस में हम किसी एक्शन वर्ड को यूज़ नहीं करते, बल्कि सिंपली हम इज, एम, आर या वॉज वर्ड का यूज़ करते हैं। इज, एम, आर का हम यूज़ कब करते हैं? जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं, हमारे पास हैं, हूँ और हैं होता है। और जब हमारे पास था, थी आता है, पास्ट की बात होती है, तो हम वॉज एंड वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये बोर्ड में के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम 9th का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो ये सेंटेंसेस आते हैं 2 से 3। पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है। पाकिस्तान इज माई डियर होमलैंड। यहाँ पर जो वोकैबुलरी सॉल्व में यूज हो चुकी है, आपने भी यही यूज करनी है। यू कैन नॉट चेंज इट। मैं पाकिस्तानी लड़का हूँ। आई एम अ पाकिस्तानी बॉय। पाकिस्तानी का पी कैपिटल, बॉय का बी स्मॉल। वो तमाम अच्छे तालिबे इल्म हैं। दे आर ऑल गुड स्टूडेंट्स। दे आर ऑल गुड स्टूडेंट्स। ये कीमती घड़ी है। दिस इज अ कॉस्टली वॉच। ये फूल सुर्ख है। These are red flowers. मेरी उम्र 15 बरस है। I am 15 years old. वो बड़ा मक्कार आदमी था। He was a very cunning man. मक्कार चालाक। नॉवल मेज पर था। The novel was on the table. चाय गर्म थी। Tea was hot. पहाड़ की चोटी बुलंद थी। The top of the hill was high. हम सब खुश थे। We were all happy. ये किताबें दिलचस्प थीं। These books were interesting. हमारे सिपाही बहादुर थे। Our soldiers were brave. वो मेरे गहरे दोस्त थे। They were my intimate friends. हमीद के बेटे ज़हीन थे। Hamid's sons were intelligent. यहाँ देखें apostrophe ऐसा आया हुआ है पोजेशन शो करने के लिए। आपने ऊपर वाले 4 सेंटेंसेस और ये वाले तकरीबन मेरे ख्याल से 15 हैं, आपने इन्हें लूज शीट पर राइट करना है लर्न करने के बाद। ठीक है।